لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصينا مع العبدون ولا يؤدي أقوال المجتهدون الذي بعد ظلما ولا يناله وصف البدن الذي ليس لستيه ثم يدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فترك الخلائق بقدرته ونشد الرياح برحمته والتسبيح بالسحور ميدان أرض. والصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهاديين المهديين لعنة الله على أعدائهم وغاصبهم وخفهم ومنكر فضائلهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. پروردگار عالم اپنی کلام بلاغت میں قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے. سورہ رحمان کی 60ویں آیت ہے. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے. لہذا پروردگار عالم اس آیت کے ذریعے سے بہت کچھ ہمیں سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے. مگر آج جناب خدیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب سید التجار کا اب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کا دن ہے. اس لحاظ سے اس کے مناسبت سے یہ محفل انعقاد کی گئی ہے. اس میں جناب خدیجہ الکبریٰ کے چند فضیلت آپ کے سامنے پیش کر کے میں اس محفل کو ختم کروں گا انشاءاللہ. تو پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے. کیوں؟ کون احسان کریں گے، کس سے احسان کریں گے، اس کا بدلہ پروردگار کیا دے گا. تو آج کے مناسبت سے جناب خدیجہ الکبریٰ محسنہ اسلام ہے. اسلام کے اوپر، اسلام کے ساتھ احسان کرنے والی کو خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں، ملکۃ العرب کہتے ہیں، سید التجار کہتے ہیں، یعنی تجارت کرنے والوں کی سیدہ، پورے عرب کی ملکہ. کیونکہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے 8ویں سال آتے ہی جناب عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا. لہذا جناب عبداللہ علیہ السلام کے انتقال کے بعد ابو طالب علیہ السلام کے ذمہ رسول خدا کی پرورش ہوئی. اسی طریقے سے ادھر جناب خدیجہ الکبریٰ کا تھوڑا سن آنے کے بعد جناب قبیلت کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے سبب سے ان کے چچا عمر نے ان کے کیئر ٹیکر بنے، ذمہ داری نبھانے والے بنے جناب خدیجہ کے. جب جناب خدیجہ تجارت کے لیے نکلتی تھی اس وقت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اس وقت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سن 17 یا 18 لکھا ہوا ہے. ادھر جناب خدیجہ تجارت کے لیے نکلتی شام وغیرہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب ابو طالب لے کے نکلتے 17 یا 18 سال کے سن سے. جب جناب خدیجہ ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ جو رسالت مآب رہتے تھے، ان کا کیریکٹر، ان کی پیورٹی، ان کے ویلیوز، ان کے یعنی انٹیگریٹی، ان کی سنسیئرٹی، ان کی آنیسٹی، ان کی موریلٹی، یعنی ان کا کردار، اقدار، سالمیت، ایمانداری، پاکیزگی، اخلاص، اخلاقیت، یہ سب دیکھتی رہیں جناب خدیجہ. کیونکہ یہ تاجروں کا اکثر یہ حال ہوتا ہے کہ تجارت کرنے والا دیکھتے جاتے ہیں کہ کون تجارت میں باتوں کو بیچتے ہیں، کون تجارت میں مال کو بیچتے ہیں، کون تجارت میں باتوں کے بیچ کے نفع حاصل کرتے ہیں، کون تجارت میں مال کو بیچ کے نفع حاصل کرتے ہیں. ان کے سنسیئرٹی کیسی ہوتی ہے تاکہ یہ تاجر دوسرے تاجر کے جو جہاں وہ رہتے ہیں، کام کرتے ہیں یا ان کے انڈر میں رہتے ہیں، ان کو لینے کی کوشش کے لیے یہ تمام ان کا خیال ان کا ذہن میں رہا کرتا. لہذا جناب خدیجہ بھی سب تاجروں کو دیکھتی کہ کون ہمارے کام آنے والا ہے. حالانکہ جناب خدیجہ کے پاس منشی، ایک کلرک یا اکاؤنٹنٹ میسرہ تھے، مگر اور تجارت کو بڑھانے کے لیے میسرہ سے بھی اور ذہین انسان کی تلاش جناب خدیجہ کو تھی. بہت سنسیئر انسان کا تلاش، اور جو بہت پیورٹی رکھتا تھا اس کی تلاش
जो इंटीग्रिटी सालमियत रखता था उसकी तलाश, जो यानी आनेस्टी इखलास के साथ काम करता था उनकी तलाश जनाब खदीजा को थी। लिहाजा जनाब खदीजा तमाम ताजिरों को देखती जाती थी और जहन में बिठा लेती थी कि कौन कैसा काम करते आ रहे हैं। लिहाजा इस 18 साल से 24 साल तक ये 6 साल के अरसे में जनाब खदीजा ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रोशनी डाली कि रसूल खुदा एक अनोखी तरीके से तिजारत करते आ रहे हैं। अबू तालिब के साथ हैं मगर रसूल खुदा का डोमिनेशन बहुत है। रसूल खुदा तिजारत करते हैं, अबू तालिब पीछे में गाइडेंस रहते हैं, मगर रसूल खुदा का बहुत चर्चा हो रहा था ताजिरों में। जनाब खदीजा का ख्याल जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पढ़ के जनाब मैसरा को, जो उनके पास मुंशी थे, उनको तिजारत की दावत के लिए जनाब रिसालत माब के पास अखबार भेजा। जनाब रिसालत माब ने कहा, है मैसरा, मैं तिजारत के लिए करने के लिए मैं कबूल करता हूँ मगर मेरे कुछ शर्तें हैं। तो मैसरा ने, जो मुंशी जनाब खदीजा के थे, उन्होंने कहा, आओ आके हमारी शहजादी से बात कर लो, आप तस्लिया कर लीजिए। लिहाजा अबू तालिब अलैहिस्सलाम के साथ जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब खदीजा के पास आते हैं, आके शर्तें तय कर लेते हैं, मुआहदा होता है। अब यहाँ पर हमें एक बात देखनी चाहिए, जो 6 साल का वक्फा जनाब खदीजतुल कुबरा रसूल खुदा के ऊपर रोशनी डाली थी, वो सब जनाब खदीजतुल कुबरा के जहन में है। रसूल खुदा का कैरेक्टर, इंटीग्रिटी, प्यूरिटी, ऑनेस्टी, मोरालिटी, ये सब जितने चीज़ें हैं जिसे उर्दू में क्या कहते हैं, यानी अखलाकियत, पाकीज़गी, ईमानदारी, सालमियत, इक़दार, किरदार, ये तमाम चीज़ें जो देखते आ रही थी। लिहाजा पूरा जिम्मेदारी जनाब रिसालत माब को सौंप दिया और मैसरा जो मुंशी थे उनको जनाब खदीजा ने हुक्म दिया कि आए मैसरा, मैं हुक्म देती हूँ कि कल से तिजारत में ये तुम्हारे साथ रहेंगे। ये अगर दिन को रात कहें तो मान लेना, रात को दिन कहे तो मान लेना। ये नफ़ा में बेचे तो भी खामोश रहना, नुकसान में बेचे तो भी, तिजारत करे तो भी खामोश रहना। अभी कुरान आई नहीं है, अभी 15 साल का वक़्फ़ा है कुरान आने के लिए। यहाँ जनाब खदीजतुल कुबरा सूरह निसा में आयत नाज़िल होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आप आतिउल्लाह व आतिउर रसूल, ऐ ईमान वालो रसूल की इताअत करो, रसूल की अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। यहाँ पर 15 साल कुरान आने वाली है, 15 साल के बाद यहाँ पे इताअत करके जनाब खदीजा ईमान का इजहार कर रही है कि कैसी कामिलुल ईमान है जिनका नाम खदीजा है। लिहाजा वो खदीजा या मैसरा से कहती हैं कि मैसरा, मैं हुक्म देती हूँ कि रात बोल, दिन को रात कहें तो रात मान लेना, रात को दिन कहे तो मान लेना, नफ़ा से बेचे तो भी चुप रहना, नुकसान से बेचे तो भी चुप रहना। लिहाजा परवरदिगार आलम रसूल की किरदार को, इक़दार को, सिंसियरिटी को, ऑनेस्टी को, अखलास को, अखलाकियत को, तमाम चीज़ों को बढ़ रहा है दुनिया में, क्योंकि रसूल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाना है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाना है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बनाना है। लिहाजा परवरदिगार उनके किरदार को लोगों में आश्कारा करते जा रहा है, मुशाहिदा करते जा रहा है कि रसूल क्या है। तो जब ये नसीहत करने के बाद मैसरा से फिर आखिर में एक बात कहती है जनाब खदीजतुल कुबरा कि ऐ मैसरा, याद रखना, अब निकले जब से वापस आने तक पूरा उनके वाक़यात मुझे बता देना, मुझे इत्तला देना कि उनका चालो चलन कैसा था, कैरेक्टर कैसा था, इक़्तिदार कैसा था, अखलाकियत कैसा था, अखलाकियत कैसी थी, तमाम चीज़ें मुझे आके बताना। हर चीज़ याद रखना, वो क्या क्या करते हैं, लिहाजा उनके साथ क्या क्या हो रहा है। ये हुक्म दे के तिजारत के लिए रवाना करा दिया। हक़्क़ुल यक़ीन, बहार और अनवार 2 किताबें हैं, बहुत सी किताबें हैं अल्लामा मजलिसी अलैहि की 2 किताबें। उसमें हक़्क़ुल यक़ीन में 25 या 24 चीज़ें रसूल खुदा की जिस्मानी किरदार यानी मौजूज़ात जिस्मानी बयान करते हैं। मैं तमाम चीज़ें बयान करने वाला नहीं हूँ,
थोड़ी चीज़ें बयान करके मैं आगे बढ़ जाऊँगा। जब तिजारत वापस आया, आने के बाद मैसरा ने खुश होकर जनाब खदीजा से बताया कि या मलिकतुल अरब, या शहजादी, बहुत नफ़ा आया, बहुत अच्छे तरीके से तिजारत हुआ। उसके बाद जनाब खदीजा ने बिठाया और कहा, मैसरा कहो कि निकले से आने तक क्या क्या हालात हुए, क्योंकि मैंने ये 6 साल, उनके 18 साल से 24 साल के सिन तक उनको मोहम्मद को मोहम्मद नहीं समझा, मजहरुल अजायब समझा, क्योंकि वो यानी अजायबों को इजहार करते रहे। ये देख के मैं मेरा पूरा तिजारत उनके हवाले किया और उनकी तुमको बनाया, पूरे वाक़यात बताओ। तो जनाब मैसरा एक वाक़यात बताते हुए आगे बढ़े, कहते हैं कि ये जितने भी लोग ताजिर थे, मजमा आता था, उनमें ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ने खत बुलंद रहता था। यानी ये इनमें ये मौजूदा ये है, ये एजाज ये हैं कि तमाम लोगों में ये कुछ इनका खत बढ़ जाता था। ये एक मौजूदा मैंने देखा। तो बताओ मुसलमानों, बताओ मोमिनीन, कि जब जनाब रसूल खुदा खुद लोगों में इतने बुलंद कर देता था परवरदिगार के रसूल खुदा ही दिखते रहे सबसे अफजल, वाला, यानी आला, तो वो रसूल ने जब कांधों पे हसनैन को बिठाया तो क्या मुसलमान नहीं देखे? देखने के बावजूद जुल्म, लिहाजा ये कुफ्र, मुनाफिकत, जुल्म और शिर्क है। और दूसरी चीज़ जनाब रसूल खुदा के सिलसिले में मैसरा ने बताया कि इनका साया ज़मीन पे नहीं पड़ता था, क्योंकि अल्लाह ये चाहता है कि इनका साये को कोई भी अपने पैरों से ना कुचल सके, ना उनके पैर उनके साये पे ना पड़ सके। एक अबर का साया उनके ऊपर करता था, जहाँ भी ये जाते थे अबर उनके साथ साथ आता था ताकि साया ना पड़े। अब फिर मोमिन सोचें कि जब परवरदिगार आलम रिसालत माप के साये को न रखने के लिए अबर रखता था, वो परवरदिगार रसूल खुदा के दोष पे मौला अली को बुत छिकने के लिए खड़ा के मौला का मर्तबा कितना उठाया, फिर भी कुफर, फिर भी जुल्म, फिर भी शिर्क, मौला अली को मानने के लिए तैयार नहीं है, हसनैन को मानने के लिए तैयार नहीं है। परवरदिगार रसूल खुदा के साथ साथ अहले बैत के किरदार को भी उभर रहा है, बता रहा है, मुशाहिदा कर रहा है कि इनको मानो और इनको भी मानो, क्योंकि परवरदिगार अहले बैत की किरदार को लोगों के सामने आश्कारा कर रहा है। और फिर तीसरी बात मैसरा ने यह कहा कि जब भी रसूल किसी दरख्त के पास से जाते थे, दरख्त झुक जाता था, तो रसूल को दरख्त सलाम करने के लिए आमादा हो जाता था। तो वो रसूल जिसे दरख्त सलाम करने के लिए आमादा हो जाते हैं, वो रसूल जब जनाब सैयदा के घर में जाके झुक के सलाम करता है तो जनाब सैयदा का मर्तबा क्या होना चाहिए? फिर भी जुल्म, फिर भी शिर्क, फिर भी कुफ्र। लिहाजा फिर मैसरा बताते हैं, जब ये नाखून बाल सबके बढ़ते थे, क्योंकि तूलानी सफ़र रहता था तिजारत करने के लिए, तो नाखून बाल ये सब चीज़ें बढ़ते थे तो हम उसे निकाल लेते थे, मगर ये कभी भी इनका नाखून भी नहीं निकाले, बाल भी नहीं निकाले, इनका बाल भी नहीं बढ़ा, नाखून भी नहीं बढ़ा। एक मौजूदा मैंने उनमें देखा। तो मुसलमान बाल, रसूल के बाल को मानने के लिए तैयार है, मानने की बात आ गई तो बाल को मानते हैं, ना मानने की बात आई तो आल को भी नहीं मानेंगे। ये कुफ्र, ये निफाक, ये शिर्क, ये मुसलमानों का अफसोस है मुसलमानों के ऊपर। लिहाजा फिर मैसरा बताते हैं, जब संग्रेज़े हाथ में लेते थे मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, संग्रेज़े कलमा पढ़ने लगते थे, कभी अल्हम्दुलिल्लाह का, कभी अल्लाह अकबर का, कभी सुभान अल्लाह का। जब संग्रेज़े हाथ में आने के बाद कलमा पढ़ने लगते हैं तो आगोश नबूवत में, आगोश रिसालत में जो पली है सैयदा, जो पले हैं हसनैन, जो पढ़े हैं ज़ैनब उम्मे कुलसूम, उनके साथ ये मुसलमानों ने क्या क्या किया। अफसोस है उन मुसलमानों के ऊपर जो हक़ को नहीं जानते, जो हक़ को नहीं पहचानते। ये हक़ुल यकीन के कलामात है जो अल्लामा मजीसी अलैहि रहमा के मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। फिर मैसरा फरमाते हैं
उनके जिस्म पे कभी मक्खी को कभी मच्छर को मैंने नहीं देखा। ये मौजज़ा उनके साथ देखा। और फिर दूसरा मौजज़ा ये भी देखा कि ये जिस रास्ते से गुजरते थे 2 दिन तक उस रास्ते में खुशबू आती थी। यहाँ पे हदीस किस्सा में ये पंजतन यानी मौला अली जनाब सैदा जनाब हसनैन ने बता दिया कि या माहू इन्नी अशम्मो इंदके रायतन तैयबतन कान्हा जद्दी रसूलुल्लाह। अय अम्मा जान मेरे, हमने नाना रसूल खुदा की खुशबू सूंघते हैं। क्या नाना रसूल खुदा घर में मौजूद है? तो पता चला रसूल खुदा जहाँ जहाँ पे जाते थे वहाँ पे खुशबू गया। ये मौजूदात यानी मजहरुल अजायब है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कई बातें हैं, वक्त नहीं है, लिहाजा मैं कट करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। जनाब खदीजा की एक बहन थी हाला, हो सकता है रिवायतों में या कबीलत की बेटी या अमरू की बेटी, बहरहाल या जनाब हाला रसूल खुदा की बहन थी। वो हाला ने जब रसूल खुदा को 25 साल आया, 28 साल जनाब खदीजा को आए, तो हाला के ज़रिए से अबू तालिब के यहाँ अखबार भेजा कि हमारी शहजादी आपके भतीजे बेटे मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला से निकाह करने के लिए आमादा है, क्या आप राज़ी हैं? और या क्या मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राज़ी हैं कि नहीं? ये बात सुन के हाला का बात सुन के जनाब अबू तालिब ने मशवरा लिया। रसूल खुदा भी हाँ कहे और चंद कंपेनियंस को, फ्रेंड्स को और रिश्तेदारों को लेके जनाब अबू तालिब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके जनाब खदीजुल कुबरा के घर को आए। यहाँ एक बात जनाब ईमान खदीजा देखिए कि जनाब खदीजा इस वजह से पैगाम भेजी कल कि लोग ये ना कहे, ये इल्ज़ाम रसूल पर आने ना पाए कि रसूल पैसे के खातिर पैगाम भेजे। नहीं, रसूल की तौहीन न होने के लिए, रसूल की इज्जत को बरकरार और बढ़ाने के लिए जनाब खदीजा कुबरा ने पैगाम भेज के बताया, रस्म को तोड़ के बताया। उस ज़माने का रस्म था कि मर्द वाले लोग या दूल्हे वाले लोग दुल्हन के घर को पैगाम भेजते, मगर ये रस्म को तोड़ के जनाब खदीजा कुबरा ने जनाब रिसालत नाब के फ़ज़ाइल को उभारते हुए हाला को भेज के बताती हैं कि ये पैसे के लालच के खातिर नहीं, मैं पैगाम भेजती हूँ उनके किरदार के खातिर, उनकी इखलास के खातिर, उनकी सिंसियरिटी के खातिर, उनकी प्यूरिटी, उनकी तहारत, उनकी पाकीज़गी, तमाम चीज़ें जो है उन्हें फजीलतें, उसके खातिर मैं भेज रही हूँ। मेरा पैसा उनके ऊपर निसार करने के लिए भी कुर्बान हूँ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम रिश्तेदारों को लेकर अबू तालिब अलैहिस्सलाम जनाब खदीजा के घर को आए, मुआहदा हुआ, बातें पक्की हुई, उसी वक्त निकाह भी हो गया। आज का लिहाज से निकाह के लिए बहुत तूलानी कार्रवाइयाँ होते हैं, मंगनी के पीछे पहले बात, मंगनी के बाद फिर बहुत खाने में वगैरह होते हैं, मगर यहाँ पर जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि निकाह कितना आसान तरीके से करना चाहिए। उसे जनाब खदीजुल कुबरा भी कबूल कर बता दिया कि आतिउल्लाह व आतिउर रसूल, मैं अल्लाह की इताअत करती हूँ और रसूल की इताअत करती हूँ। जब ये तय हो गया तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह किसने पढ़ा? जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने पढ़ा। जब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने निकाह पढ़ने के लिए जनाब रिसालत नाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा तो जनाब रिसालत नाब उठ खड़े हुए और इजाज़त दी, चाचा बिस्मिल्लाह। तो जब जनाब रसूल अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ज़बान अक़दस से जो आते हैं, देखिए कि पहले अबू तालिब ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी कुरान आई नहीं, 15 साल बाकी है कुरान आने के लिए, आयतें कुछ भी नहीं आई। बिस्मिल्लाह शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उस अल्लाह की तारीफ़ करता हूँ जो तारीफ़ के काबिल है, सदाबहार है। उसके बाद जुमले देखिए, खुतबे के जुमले देखिए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़इन्ना माला दिल्लुन ज़ाहिर, ये मेरा बेटा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला माल के खातिर जो जलील है, जो माल छाँवों के तरह है, उस माल के खातिर जनाब खदीजा से निकाह नहीं कर रहे हैं, किरदार के खातिर, इखलास के खातिर निकाह कर रहे हैं। और उसके बाद का जुमला जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का व इन्नहु लहू नबाउल अज़ीम, अभी नबूवत नहीं आई है, अभी 15 साल बाकी है। यहाँ
जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ये जुमला जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम इमरान अलैहिस्सलाम ने यानी कह के बता दिया कि नबूवत का भी इल्म जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को है और रिसालत का इल्म जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम को है और कुरान आने का इल्म जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम को है, क्योंकि लौह महफूज को देख के निकाह पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या ये अबू तालिब के ज़बान से निकले हुए जुमलों को परवरदिगार आलम ने कुरान में नस्ब कर दिया। ये मौजूज़ात अबू तालिब है, मौजूज़ात दीन है, मौजूज़ात कायनात है। अब इस्लाम में दो हस्तियाँ हमें नज़र आती हैं कि इस्लाम को जो एहसान करे या रसूल इस्लाम को एहसान करे, दो हस्तियाँ हमें नज़र आती हैं। एक जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम, क्योंकि उस दौर का मुसलमान जो भी सर उठा के चलता था, अबू तालिब की हिम्मत थी, ताकत थी कि सर उठा के चलता था उतने खिलाफ वर्दी के बावजूद भी। और दूसरा खदीजा की दौलत का सबब था कि जो भी रोटी खाता था उनकी क़ुव्वत वो जो भी क़ुव्वत आती थी जनाब खदीजा की रोटी के सबब से आती थी, क्योंकि उस ज़माने में जो भी कलमा पढ़ता था रसूल इस्लाम के दीन का इज़हार करने के बाद उसे बायकॉट कर दिया जाता था। लिहाजा उसे जो काम में जाता था वो काम से उसे निकाला जाता था। जो शेख के पास वो रहता था वो शेख उसे निकाल देता था, क्योंकि तू काफर हो गया, तू मुसलमान हो गया, तू हमारे पास काम करने का लायक नहीं है। अगर शेख है तो उसके पास कोई माल लेने कोई भी नहीं आता था, लिहाजा वो भूखा फाखा हो जाता था। तो दरे जनाब खदीजा पे आता था। मोहसिन इस्लाम, मोहसिनान इस्लाम दो अशखास है, एक अबू तालिब अलैहिस्सलाम, एक जनाब खदीजा सलामुल्लाह। इस वजह से परवरदिगार आलम भी कसम खाई है कि मैं भी कसम खाता हूँ हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, कि अबू तालिब तुम्हारे एहसान के बदले में तुम्हारे वतन से मैं कुल्ले ईमान को पैदा करूँगा। ऐ खदीजा तुम्हारे ईमान के सबब तुम्हारे वतन से मैं साहिब आए तथीर को पैदा करूँगा। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। परवरदिगार इस खलील महफिल को सामीन से ज़ाकिरीन से कबूल फरमा। इस आपके सिलसिले में जिन जिन की शादियाँ नहीं हुई हैं उनको खुशी और साथ इत्तेफाक साथ होना नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जिनकी शादियाँ हुई हैं उनको औलाद अता फरमा। ऐ अल्लाह शादियाँ इसी दीनी तरीक़े से होना नसीब फरमा। ऐ अल्लाह तमाम के दिल हवाए जब अल्लाह रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला